Good morning, everyone. So we are discussing Apache Spark today. So let's have an introductory understanding on Apache Spark, and then we will move towards PySpark, which is basically working on Spark with Python, so that we will explore. So Apache Spark, it is an open source unified analytics engine for large scale data processing, and it provides an interface for programming clusters with implicit data parallelism and fault tolerance. So the first thing is it is open source. That means you can use it without buying any license. Okay, the license is free, and it is used for large scale data processing. So we have been discussing about Apache Hadoop. Apache Hadoop is similar tool, and after Apache Hadoop, Apache Spark was developed, and because it was developed after Hadoop, so that very much tells us that many of the limitations which Hadoop had, Apache Spark basically overcame, and a lot of enhancements were done in terms of processing with Apache Spark, and that we will discuss. वो हम discuss करेंगे. Now let us understand more about it. So it was a sub project with UC Berkeley's AMP lab in 2009, and it was open sourced in 2010, and then it was donated to Apache Software Foundation. So you all know that Apache Software Foundation has got maximum number of softwares which are available for users to use without any paid licenses. And in 2014, Apache Spark became a top level project. So that is how Apache Spark got evolved. And if you see that companies like Netflix, Yahoo, eBay, so such big companies, they basically are also user of Apache Spark. And the primary reason is they also use Apache Spark for very large data set and processing that particular data set. As it is mentioned here, petabytes of data set is being processed by such companies. And Apache Spark has got capability that you can connect it with MySQL, Elastic, Kafka, Redis, MongoDB, Cassandra, HBase, Hadoop HDFS, PostgreSQL, and many more such data sources. So you can see that all of such tools which are mentioned here, they basically help us with data management or data storage. Primary features of Apache Spark, first one is speed. As I was mentioning that when you make use of Apache Hadoop, then the primary limitation with Apache Hadoop is when it performs very well with a lot of traditional tools, lot of traditional tool sets, but still there is a limitation. If you see MapReduce, so in MapReduce, what happens? You have first phase as map phase and second phase as reduce phase, right? Two phases we have. So what happens? Map phase, all of the data, whatever data you have, so that particular data is taken as small chunks by the mapper, and some intermediate output comes in. So this data lies in HDFS, that is Hadoop Distributed File System. And from Hadoop Distributed File System, this data goes into memory. And after memory, when mapper gives the output, this data comes back to HDFS. And again, the reducer takes them into memory. And again, that data comes into HDFS once the processing is done. So understand, first of all, data is going to memory, mapper is running, mapper gives the output, intermediate output, data comes back to SDFS. Again, the data gets into memory, reducer processes the data, aggregates the output, and again the results are stored into SDFS. So this input output operation, if you see how many times this input output operation is taking place, so this itself is a bottleneck. Okay, this input output operation itself is a bottleneck. It takes a lot of time. So therefore, what Apache Spark does is
it basically doesn't go with this type of flow. Apache Spark says, whenever data will come, I'll keep the data in memory itself. So the data while coming itself gets stored into the memory. So it doesn't need to get into the memory and out of the memory, into the memory and out of the memory when the processing is taking place. I hope आपको समझ में आया होगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? Apache Spark में basically whatever data you have, जो भी data आपके पास में है, वो data किस तरीके से काम कर रहा है? आपका जो है डायरेक्टली मेमोरी में ही आएगा. अब मेमोरी में आएगा तो जैसे हडूप में पहले HDFS जो कि हार्ड डिस्क में ही होता है, तो वहां से मेमोरी में आना, मेमोरी से आउटपुट निकल के फिर से HDFS में जाना. तो ये इनपुट आउटपुट लास्ट डेटा सेट है ना हमारा, बिग डेटा है, तो ये IO ऑपरेशंस ही बॉटलनेक बन जाते हैं. तो दैट हैज बीन रिड्यूस्ड. ये एक स्पीड को इंक्रीज करने का जो है तरीका है. तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पीड जो है वो 10 टाइम्स फास्टर होती है अगर हम अपाचे स्पार्क को इंडिपेंडेंटली चलाएंगे. यही स्पीड अप टू 100 टाइम्स फास्ट हो जाता है हडूप से अगर हम इसको कैसे चलाएंगे, इन मेमोरी चलाएंगे और हडूप के साथ इंटीग्रेट भी कर देंगे. मतलब अपाचे स्पार्क वर्क्स विद इंटीग्रेशन विद हडूप. हडूप के साथ में इंटीग्रेट करके आप इसको बिल्कुल चला सकते हैं अपाचे स्पार्क को. द नेक्स्ट थिंग इज रियल टाइम. नाउ हडूप में क्या है, बैच प्रोसेसिंग होता है. ओके, बैच प्रोसेसिंग इज द राइट वर्ड. सो बैच प्रोसेसिंग मींस व्हाट? बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आपके पास में ना यू हैव 10 वर्क टू डू. 10 काम है आपके पास में, 10. ओके, सो व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप बेसिकली बोलेंगे यार कैसे कैसे करना है. तो आपने वो 10 काम की सीक्वेंसिंग कर ली. ओके, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और आप एक 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 करके लग गए. अगर 2 लोग हैं तो 10 काम की सीक्वेंसिंग करो और दोनों एक एक काम पकड़ो और दोनों लोग करते रहो. तो हो क्या रहा है, मतलब आपका काम एज ए बैच हो गया. मतलब पहला काम पहला बैच, उस बैच को प्रोसेस करेंगे. दूसरा काम दूसरा बैच, उसको प्रोसेस करेंगे. ओके, एंड सिमिलर वे तीसरा, चौथा, पांचवा चलते रहेगा इस तरीके से. तो यहाँ पे अपाचे स्पार्क में क्या है, रियल टाइम. एवरी इंडस्ट्री, एवरी डोमेन, दे वांट रियल टाइम एनालिसिस, रियल टाइम प्रोसेसिंग सभी को डिमांडेड है. तो ये क्या करता है, ये बेसिकली इस तरीके से बैच प्रोसेसिंग करने के बजाय इट हैज गॉट द कैपेबिलिटी दैट you can get the data in real time and Apache Spark will keep on processing that. और इसका रीजन क्या है, इसका प्राइमरी रीजन यही है कि इन मेमोरी कंप्यूटेशन यहाँ पे होती है. मतलब डेटा को पहले से ही मेमोरी में रखता है और वहीं पे कंप्यूट करते रहता है. मेमोरी से डेटा डायरेक्टली मेमोरी में ही जाता है, कहीं और नहीं जाता. whenever you want the output, जब आपको आउटपुट चाहिए तो स्टोर कर लीजिए कहीं पे और फिर उस आउटपुट को कर दीजिए. ओके, सो दैट इज अनदर एडवांटेज, रियल टाइम, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स कि रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग होना चाहिए. जैसे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग हो रहा है, लाइव चैट्स हो रहे हैं, लाइव ट्वीट्स आ रहे हैं, तो एवरीबॉडी वांट्स कि भाई वो रियल टाइम एनालिसिस करके मिल जाए. दैट इज समथिंग बेस्ट. आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स वगैरह, दे आस्क यू कि भाई ऐसा ऐसा हैशटैग करो, ये करो, वो करो, है ना, सोशल मीडिया में डालने को बोलते हैं. सो व्हाई डू दे डू सो? क्यों करते हैं? बिकॉज they are able to in real time fetch the tweets and able to tell us कि भाई इतने लोगों ने ट्वीट कर दिया, इतने लोग ये बोल रहे हैं, इतने लोग वो बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं. कहाँ से आ रहा है ये रियल टाइम प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं इसलिए आ रहा है. तो वहां पे अपाचे स्पार्क का काफी यूज होता है. अपाचे काफका भी बहुत यूज होता है. अपाचे काफका भी रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है. नाउ another advantage is it supports multiple languages. अलग अलग languages को support करता है. That is another advantage. What happens, let's say we are 16 people here है ना, who are live discussing. So out of us, let's say 3-4 people are very good with Java and 2 people are very good with SQL and 4-5 people are very good with Python, 2-3 people are very good with R. So we all have different set of skill sets and technical abilities. अब Apache Spark के साथ में काम करना है, then how will we do? So Apache Spark allows to work with the help of different programming languages. तो Java वाले भी काम कर सकते हैं, Scala वाले भी काम कर सकते हैं, Python वाले भी, R वाले भी, SQL वाले भी. So इतने सारे interfaces ये जो है हमें देता है, and that again makes it very much useful for the developers or the analysts to work with Apache Spark. Let us move towards next, advanced analytics. तो यहाँ पे जो है, अब देखिए हम जब मैप रेड्यूस लिखते हैं कहाँ पे, हडूप के अंदर जावा को यूज करके.
तो वहां पे एक चीज है कि आपको ना पूरा का पूरा कोड खुद ही लिखना पड़ता है। हाँ, बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल है, आई एग्री विद दैट। तो आप उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। बट वहां पे मोस्टली क्या होता है, यू हैव टू राइट होल सेट ऑफ कोड, आपको पूरा कोड खुद लिखना पड़ता है। एंड दैट बिकम्स टू हेक्टिक, टू लेंथी एंड टू टाइम कंज्यूमिंग आल्सो, एंड फॉर डेवलपर इट बिकम्स हेक्टिक, राइट? ओके, डेवलपर के लिए ही हेक्टिक होता है। तो यहाँ पर एडवांस एनालिटिक्स जो है, इसमें इसमें क्या है, Spark not only supports map and reduce, it also supports SQL queries, streaming data, machine learning, graph algorithms. तो जो मैप प्रोड्यूस है पूरा कोड खुद लिखना पड़ता है। यहाँ स्पार्क में क्या किया, स्पार्क में पहले से ही और प्री डिफाइंड पहले से ही फंक्शंस बना दिए, पहले से ही ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स डेवलप करके डाल दिए कि आप जो है डायरेक्टली उन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा कि यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज भी एम्बेड कर दी गई हैं। एसक्यूएल क्वेरीज, तो जब आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होंगे उस टाइम पर आप देखेंगे कि आप एसक्यूएल क्वेरीज भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एसक्यूएल क्वेरीज एज वेल। फिर स्ट्रीमिंग डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा का मतलब क्या हुआ, अगेन वही लाइव डेटा स्ट्रीमिंग जो होती है ना, उस डेटा को भी आप कैप्चर करके प्रोसेस कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे सिस्टम्स आप देखेंगे देयर स्ट्रक्चर इज ग्राफिकल, है ना, उसमें एजेस होते हैं, नोड्स होते हैं, जैसे सिटीज का डेटा है, सोशल नेटवर्क्स में कनेक्शंस का डेटा है, बैंकिंग में बैंक अकाउंट्स और उनके बीच में रिलेशनशिप्स का डेटा है। तो ये सारी चीजें जो है ग्राफिकल वे में, मतलब ग्राफ डेटाबेस के तौर पे स्टोर की जा सकती हैं। सो दैट इज इजी वे फॉर स्टोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो दैट इज अगेन देयर इज अ मैकेनिज्म जहां पे ग्राफ एल्गोरिथम्स है, ग्राफ डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है। सो देयरफॉर दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। एंड कैशिंग, कैशिंग कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं। कैशिंग इज बेसिकली टू स्टोर समथिंग प्रोबेबली फॉर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, कैशिंग से कहते हैं। तो पावरफुल कैशिंग, तो जैसे कि मैंने कहा कि यू कैन वर्क विद अपाचे स्पार्क एंड ऑल द डेटा कैन रिलाई ऑन कहाँ पे, मेमोरी, दैट कैन बी ऑन इन द मेमोरी, मेमोरी में रह सकता है। अब व्हाटएवर प्रोसेसिंग यू आर डूइंग, तो प्रोसेसिंग में आउटपुट तो निकलेगा, है ना, इंटरमीडिएट आउटपुट्स होंगे, फाइनल आउटपुट्स होंगे। सो ऑल दैट आउटपुट यू नीड टू कीप समवेयर, उस आउटपुट को कहीं ना कहीं तो रखना होगा, है ना। तो वो कैशिंग के थ्रू क्या करता है, ये बेसिकली मेमोरी में भी रखता है, और डिस्क परसिस्टेंस कैपेबिलिटीज भी है, मतलब आप डिस्क में भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। सो दैट इज अनदर एडवांटेज। एंड देन डिप्लॉयमेंट, अब ये इसको चलाएंगे कहाँ पर, स्पार्क को आप कहाँ चलाएंगे, कहाँ पे रन करेंगे। तो स्पार्क को रन करने के लिए आप मीसॉस यूज कर सकते हैं, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपाचे स्पार्क को हडूप के साथ चला सकते हैं वाया यार्न। यार्न इज येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। तो हडूप 1 के बाद हडूप 2 जब आया, फिर हडूप 3 आया, तो मेजर चेंज जो ये यार्न का आया, दैट मेड हडूप वेरी मच ओपन फॉर मल्टीपल एंड मल्टीपल सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए हडूप को क्या किया, ओपन कर दिया। बिकॉज यार्न रन्स मैप एज वन ऑफ द ऑप्शंस। पहले हडूप में क्या था, इन केस ऑफ हडूप 1.x प्रोसेसिंग, आपको प्रोसेसिंग करना है तो केवल और केवल मैप्रोड्यूस से कर सकते हैं। बट व्हेन yarn came, so it is yet another resource negotiator, मतलब कि आप मैप्रोड्यूस एज वन ऑफ द एप्लीकेशन चला सकते हैं। मैप्रोड्यूस के अलावा बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस आप yarn के थ्रू चला सकते हैं। दैट वाज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी विद yarn। तो आप अपाचे स्पार्क को भी एज वन ऑफ द एप्लीकेशन विद हडूप चला सकते हैं। फिर अगर कुछ भी नहीं है तो अपाचे स्पार्क का अपना एक क्लस्टर मैनेजर होता है। अभी हम आर्किटेक्चर भी समझेंगे। तो अपाचे स्पार्क का अपना एक क्लस्टर मैनेजर होता है, तो उस क्लस्टर मैनेजर के थ्रू भी आप अपाचे स्पार्क को रन कर सकते हैं। दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। So we have seen so many features of Apache Spark. Now let us come to this point and understand this part. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Apache Spark it allows R, Python, SQL, Scala, Java इतनी सारी लैंग्वेजेस के साथ में आप काम कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसमें MLlib है, स्ट्रीमिंग फॉर रियल टाइम एनालिसिस है, SQL फॉर इंटरैक्टिव क्वेरीज है, GraphX फॉर ग्राफ प्रोसेसिंग है। तो ये स्पार्क कोर का हिस्सा है, ये सारे के सारे क्या है, स्पार्क कोर का हिस्सा है, और ये पूरे स्पार्क इकोसिस्टम को बनाते हैं। नाउ स्पार्क में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है RDD, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, और दूसरा है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब मैं बताऊंगा होते क्या है। नाउ RDDs, ओके, इसमें सबसे लास्ट वर्ड सबसे इजी है, डेटा सेट्स, है ना, द मोस्ट इजीएस्ट वर्ड इज डेटा सेट्स। सो रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। अब रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, रेजिलिएंट का मतलब होता है फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट टॉलरेंट, ओके।
फॉल्ट टॉलरेंट मतलब क्या हुआ? फॉल्ट टॉलरेंट मतलब हुआ कि कुछ भी अगर इश्यूज आ रहे हैं तो टॉलरेट करके आगे बढ़ते रहना, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना। अब देखो क्या होता है, अभी मान लेते हैं पहली बार मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, फर्स्ट टाइम मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। पहली बार सॉफ्टवेयर बनाते बनाते मैंने बना के उसको लॉन्च भी कर दिया। उसको लॉन्च करने के बाद में यूज कर रहे हैं। अब यूजर जब यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे ही वो उसके अंदर पासवर्ड डालते हैं और उनका पासवर्ड जो है हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करता है, तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। क्या हो गया? क्रैश हो गया, सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो क्या होगा? अब यूजर को बहुत गंदा लगेगा। आप खुद भी जानते हैं, अगर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं और वो भले ही हैंग हो रही है या क्रैश हो जा रही है बार बार, आप एक दो बार उसको ट्राई करेंगे और तीसरी बार आप उसको अपने मोबाइल से ही निकाल डालेंगे। यू विल जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर मोबाइल। क्यों? बिकॉज नोबडी हैज गॉट टाइम कि भाई बहुत पेशेंस के साथ में देखते रहे। सब चाहते हैं कि भाई बिल्कुल प्रॉपर वे में बना करके पूरी एप्लीकेशन प्रॉपर बनाइए, टेस्ट कीजिए, उसके बाद में डिप्लॉय कीजिए, तब हम यूज करेंगे, है ना? तो उसी तरीके से यहाँ पे बात है अपाचे स्पार्क पे, रेजिलिएंट है, रेजिलिएंट, फॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब इश्यूज आने पर भी वो इश्यूज को हैंडल कर लेता है, मैनेज कर लेता है। दैट इज अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ अपाचे स्पार्क, इसकी स्पेशल क्वालिटी है ये। तो दैट इज एन एडवांटेज। ओके, रेजिलिएंट। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड अपाचे हडूप का रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग। अपाचे हडूप में कैसा होता था? अपाचे हडूप में अगर देखेंगे तो we had multiple machines, तो डेटा इस सीपीयू में भी होगा, डेटा इस सीपीयू में भी होगा, डेटा इस सीपीयू में भी होगा। तो ये मल्टीपल सीपीयूज हैं, सब में डेटा होगा। कैसे डेटा होगा? बिकॉज डेटा अगर बड़ा है तो डेटा विल गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स, जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं, और वो ब्लॉक्स इन सभी सीपीयूज में डिवाइड होकर स्टोर हो जाएंगे। दैट इज हाउ इट हैपेंस। So distributed means here in Apache Spark also whatever data is going to come, the difference is that data is going to reside in memory. ये difference है। डेटा कहाँ पे रहेगा? डेटा मेमोरी में रहेगा, ये डिफरेंस है। ओके, हडूप में कहाँ रहता है? हडूप में डेटा डेटा नोड्स में रहता है। डेटा नोड्स मतलब कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में रहता है। डेटा नोड्स कहाँ पे हम सेटअप करते हैं? अलग अलग सीपीयूज में डेटा नोड सेटअप करते हैं। तो वो सीपीयूज का कौन सा स्टोरेज यूज करता है? डिस्क स्टोरेज, हार्ड डिस्क स्टोरेज यूज करता है। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेमोरी में डेटा जाएगा। डिफरेंस देख लो, है ना? मेमोरी में जाएगा क्योंकि मेमोरी फास्टर है, प्रोसेसिंग होगी तो तुरंत मेमोरी में डेटा प्रोसेस हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन अपाचे स्पार्क फास्टर भी है। तो रेजिलिएंट मतलब फॉल्ट टॉलरेंट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हुआ कि डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया। उसके बाद में डेटा सेट मतलब डेटा सेट, है ना? डेटा सेट को कुछ एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटा सेट मींस डेटा सेट, आपका जो डेटा है। अब ये तो समझ आ गया, है ना? रेजिलिएंट बस जो वर्ड है आरडीडी, इसको सिंपल समझो हडूप के ब्लॉक्स, है ना? हडूप में ब्लॉक्स कैसे होते हैं? हडूप में डेटा है तो 64 एमबी के ब्लॉक्स बन गए। वैसे ही यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट बन गए। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो डैग है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ओके, सो ये जो डैग है ना, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या होता है कि कोई भी डेटा है और उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है। तो जब डेटा प्रोसेसिंग करनी है तो किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब मैं घर के एग्जांपल लेता हूँ। मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है। ओके, सो दैट किड, अब वो कुछ भी ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्व करने के टाइम पे क्या होता है, उसको लगता है कि मैं भी ये काम करूं। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया, अब उस बच्चे को क्या लगता है, मैं भी ये काम करूं। अब उस बच्चे को उस काम की पूरी जानकारी तो है नहीं। अब जैसे किचन में ही काम कर रहे हैं, ओके, चपातीस बना रहे हैं, तो बच्चा सोचेगा यार मैं भी बनाऊंगा। नाउ दैट किड यूज्ड टू टेक दैट, जो भी आटा है उसको लेकर के एंड ट्राइज टू मेक चपातीस। ओके, बट वी नो दैट वो बच्चा जो है वो उस तरीके से नहीं बना पाएगा जैसे मदर मेक्स। ओके, तो वो ट्राई करता है, हाथ से कुछ गोल बनाता है, कुछ और शेप्स बना देता है। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि अगर हम एक्चुअल में बोले बच्चे को भाई चपाती बना के खिलानी है, तो हो सकता है कि वो सुबह से शाम तक जो है एक आध चपाती बना के ही खिला पाए। बिकॉज बिकॉज द किड डजंट नो कि व्हाट आउटपुट नीड्स टू बिकम, है ना, एंड हाउ टू बेसिकली फॉलो अ प्रोसेस एंड हाउ इट कैन बी फास्टर। किड डजंट नो, बच्चे को नहीं पता। सिमिलर वे जब कोई डेटा है और डेटा के ऊपर हम कुछ स्क्रिप्ट लिख करके, प्रोग्राम लिख करके, कमांड्स लिख करके प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम that system should be capable enough to optimize that coding, optimize that particular script
and should be able to make a plan, and that plan should be the most efficient plan. वो plan efficient होना चाहिए. तो DAG कुछ इसी तरीके से काम करता है. देखो क्या करता है DAG. अब मान लेते हैं मेरे पास में सिंपल रखने के लिए A is equal to, मेरे पास में B plus C. ओके, क्या है? B plus C into B plus C. तो मेरे पास में A is equal to B plus C into B plus C, ये मेरे पास में है. अब A is equal to B plus C into B plus C. अब इसमें देखो, अब छोटा बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, वो पहले B plus C, फिर वो करेगा B plus C, फिर वो करेगा whatever रिजल्ट जो आया है उसको इंटू करेगा. पर जो स्मार्ट वो क्या करेगा, वो बस करेगा B plus C. एक बार रिजल्ट आ गया तो दोबारा B plus C नहीं करेगा वो. आप डिफरेंस समझ रहे हो ना, क्या डिफरेंस है? ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस है कि भाई B plus C एक बार कर लिया तो B plus C कितनी बार भी आपके प्रोसेसिंग में आए, आपको दोबारा B plus C करने की जरूरत नहीं है. इसको बोलते हो ऑप्टिमाइजेशन. सिंपल भाषा में ऑप्टिमाइजेशन समझा रहा हूं मैं, है ना. तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये कौन करवा के देगा? DAG करवा के देगा. DAG क्या करता है? देखो, DAG जो है एक एक ट्री बनाएगा. ओके, डायरेक्टेड, सॉरी ट्री नहीं, ग्राफ बनाएगा, है ना. ट्री गलत शब्द हो गया. तो ग्राफ बनाएगा वो. तो ग्राफ में क्या करेगा? नोड्स बनाएगा. ये 2 नोड्स बना दिए. ओके, और एक तीसरा नोड बना दिया. 3 नोड हो गए. अब ये है क्या? ये है B. ये दूसरा वाला क्या है? ये दूसरा वाला है C. और ये क्या है? ये बेसिकली उनके बीच का जो प्लस का सिंबल है वो है. तो अब एक नॉर्मल इंसान ये ऑपरेशन 2 बार करेगा, है ना, जिसको ऑप्टिमाइजेशन का नहीं पता. पर DAG क्या करेगा? ये एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है. ये C से दूसरा ऑपरेशन हो गया. ओके, अब इस ऑपरेशन को रिपीट करवा देगा. कैसे? मतलब इस रिजल्ट को ही जो है आगे पहुंचा देगा. अब देखो DAG कैसे बनाएगा. DAG इस तरह से बनाएगा. यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन आएगा, मल्टीप्लीकेशन. तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है. अब ये एक बार रिजल्ट यहाँ से पास करेगा तो B plus C चला गया. एक बार और यहीं से पास कर देगा, एक B plus C और चला गया. इक्वल टू A में स्टोर हो जाएगा. आर यू गेटिंग व्हाट हैपेंड? तो इसने सिंपली एक ऑपरेशन जो हो रखा है, पहले से ही हो रखा है, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन बार बार होने से DAG है. तो resilient distributed data set and DAG, these are the 2 primary important things in Apache Spark to start working with. Okay, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. अब ये बेसिकली इसका आर्किटेक्चर है. सिंपल आर्किटेक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. Apache Spark में we have master and worker architecture. जैसे Apache Hadoop में master slave architecture है. Similar way, master node, if you see, we have master node and the master node is having driver program. इसमें driver program है और Spark context है. तो 2 चीजें आपको दिख रही हैं, एक है driver program and एक है Spark context. फिर हमारे पास में worker nodes हैं. आप देख सकते हैं worker nodes. वर्कर नोड्स में क्या है हमारे पास? वर्कर नोड्स के अंदर हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटर है. एग्जीक्यूटर में टास्क और कैशे है. So what happens? So master node जो है, it has got driver and Spark context. ड्राइवर प्रोग्राम इज द इनिशिएटर. वो एंट्री पॉइंट है. क्या है? एंट्री पॉइंट. अब देखो, जैसे हमारे पास में पाइथन है, तो पाइथन में एंट्री पॉइंट जो होता है वो उसका इंटरप्रेटर ही हो जाता है. मतलब जहां से जिस जगह आप काम करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे इंटरेक्टिव होता है पाइथन. जैसे जैसे आप कमांड लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं, वो साथ के साथ आपको आउटपुट देते चले जाता है ना. उसके उल्टे अगर देखेंगे तो जावा है, C++ है, सी प्रोग्रामिंग है, C# है. यू हैव टू राइट द होल प्रोग्राम. आपको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता है. पूरा कोड लिखने के बाद में देन बेसिकली it actually gets the output for us. Okay, but Apache Spark में कैसा है? Okay, Python में कैसा है? Python में बेसिकली आप लिखते रहो, इंटरेक्टिव है. अब देखो, तो इन जावा वगैरह में क्या होता है? एक मेन फंक्शन होता है. आपने कभी देखा होगा, एक मेन फंक्शन होता है. मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट. वहीं से एंट्री मिलती है. तो वैसे ही कोई भी अगर एग्जीक्यूशन करनी है स्पार्क में, तो एंट्री कहाँ से मिलने वाली है? ड्राइवर प्रोग्राम से एंट्री मिलने वाली है. वो सेशन को स्टार्ट करेगा, सेशन पूरा मैनेज करते रहेगा और उस सेशन के अंदर पूरी एक्टिविटीज होती रहेंगी. अब उसके अंदर क्या है? स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एक कंपोनेंट है ड्राइवर के अंदर. तो ये जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है, यही रिस्पॉन्सिबल है क्लस्टर मैनेजर के थ्रू सभी वर्कर नोड से बात करने का. क्लस्टर मैनेजर, जैसा उसका नाम है मैनेजर. तो क्लस्टर मैनेजर क्या करता है?
ये बेसिकली सारे के सारे वर्कर नोड्स को मैनेज करता है। तो क्लस्टर मैनेजर एक तरीके से पूरा का पूरा एक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ठीक तरीके से चलाने के लिए उसका काम होता है। पर कोई भी प्रोग्राम आएगा तो उसे एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? स्पार्क कॉन्टेक्स्ट करवाएगा। किसकी हेल्प लेगा? क्लस्टर मैनेजर की लेगा। और करेगा कौन एग्जीक्यूट? एक्चुअली वर्कर नोड्स करेंगे। वर्कर नोड्स के अंदर एक एक टास्क होती है या सब टास्क होती हैं जो वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से स्पार्क का ये आर्किटेक्चर है। एंड अपाचे स्पार्क आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, इन सभी जगह अपाचे स्पार्क यूज होता है। ओके, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस अपाचे स्पार्क गेट्स used. So now what I will do is, now I'll show you that how you can work with PySpark. तो मैं collab.research.google.com ये ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली आप एक न्यू नोटबुक ओपन करें। ओके, नोटबुक जो नोटबुक काम कर सकते हैं, and otherwise you can work here in research.google.com। आप यहाँ पे बिल्कुल काम कर सकते हैं। ओके, सो PySpark के लिए क्या है, कुछ हमें सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू सेटअप एनीथिंग, इट डायरेक्टली हेल्प्स अस। ये हमें सीधे के सीधे हेल्प करता है टू वर्क विद, टू इंस्टॉल वन लाइब्रेरी एंड टू स्टार्ट वर्किंग विद PySpark। ओके, सीधे ये हेल्प कर देता है। सो लेट मी शो यू, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द यूज केस। हम इसके यूज केस करेंगे, हम सिंपल डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस का यूज केस करेंगे, हम फिर एमएल मशीन लर्निंग यूज करेंगे विद PySpark। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने बताया कि अपाचे स्पार्क जो है, अपाचे स्पार्क जो है, इट हैज बीन वेरी यूज्ड। ये बहुत ज्यादा जो है यूज होता है। कहाँ पर ये यूज होता है? बिकॉज डेटा सेट इतना लार्ज है। सो इफ द डेटा सेट इज सो लार्ज, देन अगर आप ट्रेडिशनल वे में, एक सीक्वेंशियल वे में अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को चलाएंगे, सो दैट एल्गोरिथम मे नॉट जस्टिफाई टू प्रोसेस द डेटा। वो उस तरीके से प्रोसेस करके रिजल्ट लाने में जस्टिफाई शायद नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से इट इज रियली इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ ऐसा लेके आए जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में, ओके ना, वेरी इट शुड बी एबल टू प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करने के हमारी हेल्प कर सके। फाइन, सो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम गूगल कोलैबोरेटरी में एक न्यू बुक ओपन करके इसमें हम काम कर सकें। तो सबसे पहले जो है, वी विल इंस्टॉल अपाचे स्पार्क। हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने पे इंस्टॉल PySpark, बस इतना ही, इतनी कमांड से वी विल बी एबल टू डू दैट। सो लेट मी जस्ट help you with the commands that we will run. So we will start with pip install, pip install install PYSPARK। बस इतना ही लिखने से आपका अपाचे स्पार्क इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो INSTALLING इंस्टॉलिंग, ओके, और इंस्टॉलेशन। फाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले पिप इंस्टॉल PySpark करेंगे एंड वी विल एग्जीक्यूट दैट। सो दिस शुड हेल्प अस इंस्टॉलेशन ऑफ PySpark इन दिस पर्टिकुलर नोटबुक। अब इसके बाद में हम जो है इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले जो पैकेज हमें चाहिए वो हम लेंगे फ्रॉम PySpark डॉट SQL मॉड्यूल यूज करेंगे। फ्रॉम PySpark डॉट SQL इंपोर्ट स्पार्क सेशन, SPARK स्पार्क सेशन। ओके, तो ये हम इंपोर्ट करेंगे एंड आफ्टर इंपोर्टिंग दैट व्हाट वी विल डू, वी विल बी क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्पार्क सेशन का। स्पार्क इज इक्वल टू, हम स्पार्क सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं अभी भी इंस्टॉल हो रहा है। लेट इट गेट इंस्टॉल्ड, उसके बाद में हम आगे के एग्जीक्यूशंस करेंगे। अब इसमें SPARK स्पार्क SESSION स्पार्क सेशन, तो अब इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अब मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ फ्रॉम PySpark.SQL import spark session, spark is equal to spark session dot, अब यहाँ LDER spark session dot APNAME app name, और यहाँ पर ऐप को एक नाम दे देंगे। वी विल गिव अ नेम ओवर, इसको बोल देते हैं IRST
फर्स्ट ऐप ऐसा नाम दे दिया, ठीक है, फर्स्ट ऐप करके हमने इसे नाम दे दिया। तो स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम डॉट, यहाँ पे आएगा गेट और क्रिएट, मतलब ऐप एक क्रिएट कर दो, गेट और क्रिएट and it's a function, and let me, so spark becomes set of spark session का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू आई कैन स्टार्ट मैनेजिंग द डेटा। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है मैं डेटा मैनेज करना शुरू कर सकता हूँ। मैनेज करना शुरू कर सकता हूँ का मतलब क्या है, मतलब सबसे पहले मैं डेटा लोड करूंगा, लोड करने के बाद मैं उसके ऊपर काम करूंगा। ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, राइट, द स्पार्क ऑब्जेक्ट। अब जो है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल लोड सम डेटा। सो मैं यहाँ पे data इज इक्वल टू spark 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 dot, now it is going to provide me options। तो मैं यहाँ पे read spark dot read मैं यूज करूंगा, एंड read क्या करना है, उसके बाद में मुझे क्या रीड करना है मैं बता भी सकता हूँ। CSV रीड करना है तो मैं CSV लिखूंगा। ओके, सो spark dot read dot CSV, और यहाँ ब्रैकेट में मुझे पाथ देना है, जो फाइल रीड करनी है ना उसका यहाँ पे मुझे पाथ देना है। तो अभी मेरे पास कोई डेटा यहाँ दिख रहा नहीं है, तो मैं यहाँ से एक अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सैंपल डेटा है यहाँ पे कुछ सैंपल डेटा जेसन, ये देखो, ये कैलिफोर्निया हाउसिंग का CSV फॉर्मेट है, इसी को ले लेते हैं। तो कॉपी पाथ कर लिया यहाँ से, और इधर हमने इसे पेस्ट कर दिया, और मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। सो डेटा इज इक्वल टू स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV, और CSV जो है उसके ब्रैकेट्स में आई हैव पास्ड द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। अब मैं डेटा डॉट यहाँ पे HEAD हेड, और मेरे को 3 लाइंस देखने हैं, ये मैंने एग्जीक्यूट किया। So will I be able to see the 3 lines? Yes, I am able to see the 3 rows. मैं 3 rows देख पा रहा हूँ यहाँ पे। Okay, so you have seen here, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने pip install PySpark से within few seconds I was able to install PySpark, and then from PySpark.sql import Spark session। तो Spark session मैंने import किया जिससे कि मैं Spark session शुरू कर सकूं, एंड देन मैंने स्पार्क सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम, उसको मैंने ऐप नेम दे दिया विच वाज ऑप्शनल, एंड देन गेट और क्रिएट। या तो वो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर हम एक नया एक स्पार्क सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फिर डेटा इज इक्वल टू स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV, और यहाँ CSV का पाथ दे दिया। इससे स्पार्क जो है एक CSV को रीड कर पाया और उसे डेटा में स्टोर कर पाया, और डेटा डॉट हेड करके हमें डेटा दिख भी रहा है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो वाइज उसने सबको स्टोर किया हुआ है। ओके, so this is how we can start working with Apache Spark। इस तरीके से हम Apache Spark के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। Yes sir, your voice is not clear. Yeah, so here we will conclude for today. I have told you that how to basically install PySpark install कैसे करते हैं वो मैंने दिखा दिया, and कैसे आप एक डेटा सेट को लोड कर सकते हैं। And now in the next session we will actually do the analysis। हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, पहले प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट देखेंगे, and then we will do the analysis। Okay, so for today that's it। We have seen the intro part, and we have just seen that how to start working with PySpark। So that's it we will do for today, and next session we will be working on the rest of the part, that how we can analyze and work with data with PySpark। All right, so thank you very much.